ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ, 3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ, 4 ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ -2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ, -3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ, -4 ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। -2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ 2 × -1 ਐਂਡ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ। -1 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? -1 ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੂਟ ਇਜ਼ ਆਇਓਟਾ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ -1, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਇਓਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ -1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ -1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਵੀ -1 ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ -1 ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ -1 ਦਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਇਓਟਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਇਓਟਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ -1 ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ -1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਈਨਸ ਰੀਅਲ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਇਓਟਾ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਦੋਨੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ -2 ਹੈ ਤਾਂ -2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਦੈਟ ਦ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ -2 ਇਜ਼ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਇਓਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ -2 ਇਜ਼ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ -2 ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਔਰ 2 under root iota. Similarly, square root of -3 is -3 under root iota. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ and ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, and 3 under root iota, -3 under root iota and +3 under root iota। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, and ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ -1 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਈ, ਫॉर ਐਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਸਪੋਜ਼ A ਇਜ਼ ਐਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ A ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਇਓਟਾ ਔਰ -A ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਇਓਟਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ A ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, b > 0, a > 0 ਐਂਡ a ਐਂਡ b ਆਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ a ਅੰਡਰ ਰੂਟ b ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ ab ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, है ना। कहने का मतलब है कि -2 अंडर रूट होवे और इत्थे -3 अंडर रूट होवे, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब की बनता है
अगर आप अपनी +1 नॉलेज के हिसाब नाल देखिए तो एदा की बनेगा 2 आयोटा, ठीक है, और एदा की बनेगा 3 आयोटा, क्योंकि ये नेगेटिव रियल नंबर ने ना, है ना। तो -1 की जगह आप आयोटा लिखता, -1 की जगह आयोटा लिखता, और 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। हुण जो इन्हों मल्टीप्लाई करोगे तो की आएगा अंदर, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया 6 इंटू आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर इज -1, तो कितना आ गया 6 आ गया। लेकिन अगर तुसी एदे उपर अपनी आ वाली 10th वाली नॉलेज अगर लगाने हो प्रीवियस क्लास वाली, तो तुसी कहोगे कि भैया 2 नंबर ने उन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो आ माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, तो अंदर कितना आ गया 600, है ना। तुसी इहनूं एवें दिखा सकते हो कि -2 इंटू -3 का टोटल अंडर रूट, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 3 और 2 हो गया 6 अंडर रूट। देखो इत्थे अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट नॉलेज एदा आंसर आया -6 और अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज आंसर आया +6। केड़ा ठीक है आंसर जिहड़ा है वो आ ठीक है। आ वाला ठीक क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन के उपर आ वाला फार्मूला क्यों नहीं लग रहा। यू ऑल क्लीयर दैट कि आ जिहड़ा फार्मूला है अपनी जो छोटी क्लासेस दे विच उहदे विच आपां पॉजिटिव रियल नंबर्स बारे पढ़ते सीगे, तो इत्थे ए और बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन हुई है और टोटल अंडर रूट होया है। लेकिन इत्थे जो ने ये नैगेटिव रियल नंबर्स ने, इस करके आ वाला फार्मूला नहीं लगेगा ऊपर वाला, ये लगेगा अपनी +1 की नॉलेज वाला जो आप हुण स्टार्ट किया। तो ये गल्लां तुहानूं याद रखनियां ने, स्क्वेयर रूट ऑफ अ नैगेटिव रियल नंबर नूं तुसीं किवें डील करना है और किवें तुहाडी ओहदी वैल्यू आएगी। राइट नाउ लैट्स हैव सम फीचर्स और सम प्रॉपर्टीज़ जो एदियां आपां अगे आइडेंटिटीज़ जिन्हों आप कह सकते हैं। सो कुछ यू कैन से सम ऑफ द फार्मूलेज और आइडेंटिटीज़, ठीक, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 and Z2 are two complex numbers. Then we have the formula number 1, Z1 plus Z2 whole square। जिमें छोटी क्लासेस दे विच तुसी x plus y का होल स्क्वायर का फार्मूला किया सीगा ऑन द सेम लाइनस, तो की आया सी Z1 स्केयर 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्केयर, है ना। इत्थे x plus y जो रियल नंबर सी हुण कॉम्प्लैक्स नंबर्स ने, तो सेम लाइनस के उपर फार्मूला भी सेम है, एक्स स्केयर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। राइट, तो नैगेटिव फार्मूला भी थोड़ा याद होएगा Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, Z1 स्क्वायर 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। थर्ड फार्मूला क्यूब का ले लिए Z1 प्लस Z2 क्यूब। फोर्थ फार्मूला Z1 माइनस Z2 क्यूब। राइट, वो बिल्कुल सेम लाइन्स पे है, इतने एक्स प्लस वाई का क्यूब याद है थोड़ा फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर, अगर तो प्लस है विच। राइट, और इत्थे आ जाएगा Z2 Z2 पावर क्यूब। ओके, अगर माइनस है तो आ जाएगा Z1 क्यूब प्लस हेयर वी हैव माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर एंड माइनस Z2 क्यूब। 4 फार्मूले। एक है अपने को x माइनस वाई और x प्लस वाई का प्रोडक्ट का फार्मूला, Z माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ओके, आ फार्मूला की बनता है, एक प्लस फैक्टर है एक माइनस फैक्टर है, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। सो दीज आर सम ऑफ द आइडेंटिटीज विच यू विल यूज इन योर क्वेश्चनस, एज इट इज़ उन्होंने तुसी यूज कर सकते हो। हुण आपां कुछ एग्जाम्पल्स एदे विच आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। दिस वीडियो इज़ इन कंटिन्यूएशन फॉर आवर प्रीवियस वीडियो, जिथे मैं थोनू कॉम्पलैक्स नंबर की डेफिनेशन दी है, कॉम्पलैक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट को आप किवें सैपरेट कर सकते हैं, ठीक है, किवें लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मैं तुहानूं सिखाया सीगा, एडिटिव इनवर्स सिखाया, ये सब गल्लां हुण इत्थे एग्जाम्पल्स विच यूज होणगियां। एडिटिव आइडेंटिटी दसी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी दसी है, वो सारियां गल्लां इत्थे यूज होने वालियां ने हुण। राइट, वो तुहानूं प्रीवियस वीडियो जिहड़ा है उहदा मैं लिंक भी तुहानूं आ सैकेंड वीडियो में सैकेंड पार्ट दे विच तुहानूं पा दांगा।
ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ in the form of a plus b iota। जो भी नीचे क्वेश्चंस ने express the following in the form of a plus b iota, यानी तुहानू जो भी दिता है हुण तुसीं एक complex number दी form च लेके आओ। first part is here you have example number second first part and we have two complex number 5 iota into 1/8 iota। तो अपना जो प्रीवियस काम है वो थानू आना चाहिए और सैकेंड पार्ट ये 3 कॉम्पलैक्स नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने देते हैं उन्हें 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा पावर क्यूब राइट। तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने प्रीवियस नॉलेज के उपर जो प्रीवियस मतलब जो आप लास्ट वीडियो के कर चुके हैं ऑलरेडी वो उपर बेस्ड है। हुण देखो आ 2 कॉम्पलैक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन है। दीज आर कॉल्ड प्योरली इमेजनरी नंबर और प्योरली कॉम्पलैक्स नंबर्स हैं क्योंकि ये रियल पार्ट नहीं ना है ना, क्योंकि रियल पार्ट इज 0 हेयर रियल पार्ट इज 0 आयोटा लगे है तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही दिता है। सो इट्स अ प्योरली कॉम्पलैक्स नंबर प्योरली इमेजनरी नंबर। हुण की करांगे आ रियल जो पार्ट है द रियल वैल्यू जो है उन्होंने रियल पार्ट नाल आयोटा नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/8 एज इट इज़ and here you have iota square is you all know that iota square is -1। I had already told you in my previous lecture iota square is -1 लगावांगे तो इत्थे कितना आ जाएगा 5/8 but you have to write this answer in this form। तो किवें लिखोगे फिर 5/8 देखो इहदे नाल iota दा आया नहीं हुण this is only the real part। तो रियल पार्ट तो हैगा फिर इमेजनरी पार्ट किवें लियावांगे मैं तुहानूं दस्सिया ही सीगा हरेक रियल नंबर कैन बी रिटन एज दिस 0 आयोटा जिहदे विच कंपलैक्स पार्ट तुहानूं नहीं आ रहा उदों 0 आयोटा लिख दो बस। हुण इहनूं इहदे नाल कंपेयर करांगे a plus b आयोटा। सो तुसीं इत्थे लिखोगे हेयर a is 5/8 and b is 0 इमेजनरी पार्ट इज 0। हुण इहनूं सॉल्व कर लैंदे आ ओके। तो आ 3 अपने कोल कंपलैक्स नंबर ने ये भी प्योरली कंपलैक्स नंबर है प्योरली इमेजनरी नंबरस ने इन्हां विच रियल पार्ट है नहीं। तो चलो सब तो पहला दोनों आप मल्टीप्लाई कर देने 2 एज इट इज़ और नाल आयोटा स्क्वायर फिर माइनस भी है तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया ठीक है। माइनस दी क्यूब कितना होंदा है -8 दी क्यूब तो 8 दा क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 राइट 64 इंटू 8 512 लिख देने फिर आप बोलो समझ आ गया। और इत्थे आ जाएगा आयोटा क्यूब। हुण जो आप प्रीवियस लैक्चर दे विच तुसीं सिक्ख्या सीगा आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस बाहर है +1 आ जाएगा ये -1 एज इट इज़ ठीक है। 512 नूं तुसीं वैसे इहदे नाल कट सकदे हो ठीक तो 2 नाल आपां फिर कट दिंदे इहनूं ठीक है। 256 आयोटा क्यूब की आएगा देखो कल भी दसिया सीगा मतलब कल मीनस तो प्रीवियस वीडियो जो आप किया सी आयोटा स्केयर इज -1 तो आयोटा क्यूब की आ जाएगा आयोटा स्केयर इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा आ जाएगा तो इत्थे तुसी माइनस आयोटा भर सकते हो। हुण -1 एज इट इज़ एंड माइनस दिस माइनस एंड माइनस प्लस you will left with iota over 256 this means that 1 over 256 into iota। हुण तुहाडे कोल सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही बचिया है तो फिर इनू आपां a प्लस आयोटा b दी फॉर्म च किवें लिखांगे 0 प्लस आयोटा इंटू 256। हुण इनू इहदे नाल कंपेयर कर लो वट इज़ द वैल्यू ऑफ a द वैल्यू ऑफ a इज़ 0 and what is the value of b only imaginary part ठीक है आयोटा ने नाम नहीं लिखना। सो b is 1 over 256। देखो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम हैगा अपने कोल और थानू कह रहा है वो कि तुसी आ जो कॉम्पलैक्स नंबर आपां नू दिते हुए ने जो ये कॉम्पलैक्स नंबर दिते हुए ने उन्होंने तुसी इस फॉर्म च लिख के दिखाना ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्यूब है तो क्यूब का उन्हें फार्मूला थानू मैं लिखवाया है z1 + z2 का क्यूब
ਤਾਂ ਇੱਥੇ Z1 ਮਾਈਨਸ Z2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਾਈਨਸ 3 ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਕਿਊਬ, ਤਾਂ a ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ 3 आयोटा ਦਾ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ, ਮਾਈਨਸ 3 a ਸਕੁਆयर इंटू b, ठीक है, 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3 आयोटा ਦਾ ਸਕੁਆयर, ठीक है, प्लस ये तो आप कर ही दिता है इतने, राइट। तो माइनस 3 आयोटा का क्यूब पाता, तो माइनस का क्यूब माइनस आ गया बाहर, ये मैं फार्मूला लगाता, फार्मूला क्या लगाया है एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है, आ वाला आ चीज़ इतने लगाई है, और आ हो गया, और माइनस वाई क्यूब, राइट, आ चीज़ मैं इतने लगाती। हुण इहनूं आपां सॉल्व कर लेने, ये हो गया 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब माइनस 75 गुणा 3, है ना, 3 गुणा 25 गुणा 3, ये टोटल आपां वो कर देने, है ना, 25 9 225, ठीक है, और नाल आयोटा आ गया 135 आयोटा स्क्वायर। सब ये जो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है ना, वो कट दो, सीधा ही दिखा दो बस इन्हों एवं। ओके, नाउ 125 एज इट इज, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, है ना, तो माइनस हो गया, ये 27 माइनस बाहर है, एक माइनस इतों आ जाएगा, तो प्लस 27 आयोटा आ गया, और माइनस 225 आयोटा आ गया, इत्थे आ गया माइनस 35, क्योंकि आयोटा स्केयर इज़ -1, तो इत्थे तुसीं लिख सकते हो आयोटा स्केयर इज़ -1, आयोटा क्यूब इज़ माइनस आयोटा, ठीक है। हुण इहदे विच्चों इहनूं माइनस करो, -10, और ये 200 और 198 आयोटा आ गया, ठीक है, बस ये इस फॉर्म च आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी आयोटा, ए की वैल्यू आ गई -10 और बी की वैल्यू आ जाएगी -198। दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 3। 4th एग्जाम्पल में भी देखो, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर उन्होंने सैट करके ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म च लिखना है। मल्टीप्लाई किमें करांगे, देखो इधर आ देखो, इनू ये ना समझना कि दोनों रियल ही है, आ तो रियल है लेकिन ये आ माइनस अंडर रूट लग्या हुआ है ना, तेन आप एवें सैट कर लें। -3 आ तो बाहर है ना माइनस, लेकिन माइनस इतने अंदर है, तो -1 का अंडर रूट कितना होंगे, आयोटा आ गया ना, तो आ गया आयोटा इंटू 2 अंडर रूट, राइट। और इतने तो दिता ही होया है 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस आयोटा, बस इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई करो। सब तो पहले इनू चक्को, इनू मल्टीप्लाई करो, फिर इनू चक्को, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो टोटल मल्टीप्लाई होने तो बाद ये आ जाएगा -6 प्लस 2 अंडर रूट, ठीक है, और नाल जेड़ा आयोटा 3 अंडर रूट कॉमन आएगा, और 1 प्लस 2 इंटू 2 अंडर दी रूट, राइट, इंटू आयोटा, ठीक। तो ए की वैल्यू आ है, बी की वैल्यू आयोटा चलो आप इतने लगा चुके हैं आगे, तो आ गई बी की वैल्यू, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आप हुण तक काम किया वो तो रिलेटेड एग्जाम्पल्स ने। हुण नैक्सट टॉपिक पर चलते हैं, द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्पलैक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्पलैक्स नंबर उसका की मतलब है, जिमें तुहानूं पता ही होएगा कि रियल नंबर का भी अगर आप रियल विच पॉजिटिव रियल नंबर है या नैगेटिव रियल नंबर है, वो तो मॉडुलस की डेफिनेशन हैगी सी ना। तो मतलब की होंदा है एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर चाहे पॉजिटिव रियल नंबर है तो भी पॉजिटिव, नैगेटिव रियल नंबर है तो भी पॉजिटिव। इत्थे भी वही है कि तुसी एब्सोल्यूट वैल्यू लैनी है और वो भी पॉजिटिव लैनी है। देखो किमें आएगी, सपोज करो आई एम गिविंग द डेफिनेशन, let z is equal to a plus iota b be a complex number
then modulus of z denoted by z modulus, आ मॉडुलस का साइन है, and is given by z modulus is equal to a plus iota b ਦਾ modulus, right। ਹੁਣ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो यदा मतलब है कि आयोटा का पहले छड्डो और रियल और इमेजनरी पार्ट जो है ਉਹਦਾ स्क्वेयर कर दो, चाहे वो जो मर्जी ने। आयोटा का ਵਿੱਚ स्क्वेयर नहीं करना, फिर नैगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि अपन पता ही है कि आयोटा का स्क्वेयर की होंगे -1। तो आप हुण आयोटा नू नहीं ले रहे, तुसीं इहदे विच आयोटा नू नहीं लेना, सिर्फ रियल और इमेजनरी पार्ट नू लेना है और उसका स्क्वेयर कर देना है और स्क्वेयर करके ऐड कर दो, राइट, और अंडर रूट कर दो। दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम मॉडुलस अगे क्वेश्चन में यूज होना है, इस करके थोड़ा ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम मॉडुलस की अगर आप कोई एग्जाम्पल लेने हैं तो मान लो तुहाडे कोल 4 + 5 आयोटा है, ਇਹਦਾ मॉडुलस कढ़ना है, या -3 - 7 आयोटा है, ਇਹਦਾ मॉडुलस कढ़ना है, या होर देख लो कि एक पॉजिटिव है एक नैगेटिव है 8 आयोटा, ਇਹਦਾ भी मॉडुलस कढ़ना है। कोई भी एग्जाम्पल, या अकेला देख लो 3 है +0 आयोटा, या 7 9 आयोटा, ਇਹਦਾ मॉडुलस कल्ला ही है, ਇਹਦੇ रियल पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट ही है। सो ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, देखो तुहानूं मैं 3-4 एग्जाम्पल ले लिया ने, फटाफट ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करते हैं। तो 4 + 5 आयोटा का अगर तुसीं मॉडुलस कढ़ना है तो की करते हैं आप, रियल और इमेजनरी पार्ट ले लो। रियल पार्ट कितना है 4, इमेजनरी पार्ट कितना है 5, और उन्होंने स्क्वेयर कर दो, 4² 5², अंडर रूट कर दो, कितना आ गया 16 + 25 41 अंडर द रूट्स। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। आ ले लो, दोनों नेगेटिव हैं, -3 - 7 आयोटा। की करना है, रियल पार्ट ले लेना है पूरे का पूरा और इमेजनरी पार्ट ले लेना है पूरे का पूरा ही विद साइन। तो -3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ठीक है, 9² + 49 ऐड कर दो, है ना 58। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बिल्कुल वही। रियल और इमेजनरी पार्ट लो, 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड कर देना, है ना। फिर है अपने को अगर कल्ला ही रियल पार्ट ही हो बस 3 + 0 आयोटा, बिल्कुल उवें करना है। 3 का स्क्वायर लो प्लस 0 का स्क्वायर लवो, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट हो गया, फिर 3 आ गया। तो रियल पार्ट के 3 का मॉडुलस 3 ही। अच्छा 9 आयोटा है, ਇਹਦਾ मॉडुलस कढ़ना है तो कितना आएगा, रियल पार्ट कितना है ये 0 0 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट कितना है 9 9 का स्क्वायर अंडर द रूट, कितना आ गया 9। स्क्वायर एंड अंडर रूट विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट 9। इस 9 दे विच आयोटा नहीं है, यू आर टेकिंग द ओनली द इमेजनरी वैल्यू और उसका स्क्वायर करके अंडर रूट किया तो वैल्यू आ गई अपने को। दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस कॉन्सैप्ट। होने क्या है, कॉन्जुगेट कॉन्सैप्ट की होंगे, वट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number। उसी तरह ही अगर थोड़ी डेफिनेशन लिखनी है, सपोज करो z थोड़े को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z + आयोटा z, देन conjugate of z is denoted by z bar, ठीक है, and is given by z bar। इत्थे आ गया a + आयोटा b बार। बार का मतलब की है कि कंजुगेट कढ़न दे लई तुसी रियल और इमेजनरी पार्ट नू नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रखने हैं, सिर्फ चेंज करना है आयोटा टू माइनस आयोटा।
So actually this bar is for iota only and to change the sign of iota, जो भी इत्थे साइन है आयोटा का वो तुसी चेंज कर देना, तो की आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी, तो आयोटा के आगे प्लस सी चेंज हो गया। फिर दोबारा ਇਹਦਾ बार कटोगे, ਇਹਦਾ मतलब की आ गया Z बार का दोबारा बार कटिए तो उही कॉम्पलैक्स नंबर थोड़े को आ जाएगा। ये भी गल याद रखनी है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो आ तो चलो हैगा इसी का कि बार आप कटना है, बार मीनस कंजुगेट, द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्पलैक्स नंबर इज दिस, कंजुगेट का कंजुगेट करो तो दोबारा ओरिजिनल कॉम्पलैक्स नंबर आ जाएगा थोड़े को। प्रीवियस वीडियो दे विच मैं थानू एक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कढ़ना दस्सिया सीगा, हुण उहदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नू आपां किवें डिनोट करदे हां, Z इनवर्स या 1/Z, राइट। ये मैं तुहानू दस्सिया सीगा। तो हुण आपां इहदा रिलेशन देखदे हां, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दा कंजुगेट ते मॉडुलस दे नाल क्या रिलेशन है, और जो फार्मूला अपने को आएगा दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट फार्मूला। वो काफ़ी क्वेश्चंस विच और काफ़ी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे विच और जिहड़े कंपीटीशन एग्जाम्स ने उहदे विच डायरैक्ट यूज हुंदा है, क्वेश्चन नू फटाफट ऐ कढ़ दिंदा। अदरवाइज तुहानू तीन चीज़ां कढ़नियां पैणगियां, मॉडुलस, कंजुगेट और फिर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, फिर उस रिलेशन को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। अदरवाइज यूज दैट रिलेशन विच यू आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है, अगर Z मान लो अपने को है A प्लस आयोटा B, तो प्रीवियस वीडियो के विच मैं थानू 1/Z किवें कढ़ के दिखाया सीगा, इनू आपां लिखांगे Z इनवर्स किवें कीता सीगा, आ ले लो A/A² प्लस B² प्लस आयोटा, और इत्थे की कीता सीगा आयोटा और इत्थे माइनस B करता सी आपां, ठीक है, और नीचे आ गया सी A² प्लस B², राइट। हुण इन्हां दे विच आपां रिलेशन करदे हां, अपने को कॉम्पलैक्स नंबर की है आ, तो यदा कंजुगेट की हो जाएगा Z बार, तो इत्थे प्लस है तो इत्थे की ना आ जाएगा A माइनस आयोटा B, राइट। हुण जो आपां इनवर्स कढ़िया उन्होंने आपां ऊपर नोमरेटर देखो की कर रहे हैं, नोमरेटर हो गया A माइनस आयोटा B, आ चीज़ माइनस आयोटा माइनस है ना इत्थे, और नीचे की आ गया A² प्लस B²। हुण इनू देखो Z बार कितना सीगा A² B² अंडर द रूट, या इनू ऐ लिख लो Z बार दा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A² प्लस B², राइट। हुण बस आ तीनों चीज़ां यूज करके एक आपां जो मॉडुलस सीखिया है, एक जो आपां कंजुगेट सीखिया, और एक जो आपां प्रीवियस लैक्चर दे विच मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सीखिया सीगा, उन्होंने इस फार्मूले विच लगाओ। तो 1/Z इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज, क्योंकि ओरिजिनल कॉम्पलैक्स नंबर अपने को कितना सीगा A प्लस आयोटा B, आ की आ गया कंजुगेट, और नीचे की आ गया मॉडुलस दा स्क्वायर। तो इन्होंने हुण क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके की आ जाएगा Z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू Z बार। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आ भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, चाहे एस फॉर्म च याद कर लो इनू, चाहे एस फॉर्म च याद कर लो, चाहे अगर आप Z कढ़ना है, मतलब अगर कॉम्पलैक्स नंबर कढ़ना है तो उन्होंने मॉडुलस ऊपर और उसका कंजुगेट नीचे, चाहे एस फॉर्म च याद कर लो और चाहे मल्टीप्लीकेशन याद कर लो कि जो मॉडुलस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कॉम्पलैक्स नंबर इनटू देयर इनटू हिज इट्स कंजुगेट, दोनों की मल्टीप्लाई करो, मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। आ तीनों टॉपिक आपस दे विच इंटर रिलेटेड ने, ये थानू मैं प्रीवियस वीडियो विच करवाता सीगा, हुण भी थानू मैं रिपीट करवाता, तो मॉडुलस और कंजुगेट मैं थानू हुण करवाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू तुसी चंगी तरह टॉपिक नू करो, एदियां एग्जाम्पलां भी करो, एदियां भी तुसी एग्जाम्पल्स करो। देखो मैं इत्थे आ थोड़ी थानू मैं एग्जाम्पल दस, अगर मान लो अपने को है 5 + 3 आयोटा, तो Z बार कितना आ जाएगा, बस माइनस कर दो 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आयोटा नू माइनस आयोटा कर दो, तो कंजुगेट का मतलब है यू हैव टू कन्वर्ट आयोटा टू माइनस आयोटा जस्ट, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट नू आपां नहीं छेड़िया हैगा, और कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट करांगे तो कंजुगेट ओरिजिनल अपने को कॉम्पलैक्स नंबर आ जाएगा। तो हेयर वी हैव सम ऑफ द फीचर्स, सम ऑफ द रिजल्ट्स, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज यू कैन से, और सम ऑफ द फॉर्मूले for the topics which we have already done here, modulus and conjugate। तो इत्थे की दस रहा आपां नूं कि अगर दो कॉम्पलैक्स नंबरस अपने कोल हैगे ने और उन्हां दा अलग अलग
ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੋਡੂਲਸ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਕੱਠੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡੂਲਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢ ਲਓ ਫਿਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 1/z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਓਵਰ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ 3 + 4 ਆਇਓਟਾ, ਔਰ ਥਰਡ ਪਾर्ट एक होर क्वेश्चन है 5 - 7 आयोटा ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾर्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, z ਬਾਰ ਓਵਰ z ਮੋਡੂਲਸ, ਸਿੰਪਲ z ਬਾਰ ਓਵਰ z ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ z ਹੈ 2 - 3 ਆਇਓਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ z ਬਾਰ ਲਵੋ, z ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਕੰਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਓਟਾ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 2 + 3 ਆਇਓਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿ ਰੀਅਲ ਔਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾर्ट ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਸਕੁਆਇਰ प्लस -3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਰਾਈਟ। 4 और 9 13, तो z स्केयर आ गया 13। बस भर दो वैल्यू, आ ऊपर और आ नीचे। तो 2 + 3 आयोटा नुमरेटर एंड 13 डिनोमिनेटर, एंड योर आंसर इज 2/13 प्लस आयोटा 3/13। दिस इज योर आंसर। बोलो कितना ईजी है। सैकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी यहीं करना है। तुम देखो आंसर दसा है कितना है, ये हो गया। पहले इधर कंजुगेट करोगे 3 - 4 आयोटा नुमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 नीचे आ जाएगा, राइट। वो आ जाएगा ਉਹਦਾ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कितना ईजी है। ਹੁਣ आ जाओ 6th एग्जाम्पल। 6th एग्जाम्पल ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, a + ਆਇਓਟਾ b ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਟ ਨੇ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERT ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਔਰ 3rd ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ I will solve these questions। अगर थानू नहीं आया तो I will take your difficulties। So first and second part ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। एग्जाम्पल 6 ਦਾ फर्स्ट पार्ट कि किवें ਇਹਨੂੰ a+, वैसे a+ आयोटा b फॉर्म ਦੇ लिखने ਆਪਾਂ काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। तो आ वाला पार्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ करना है, ठीक है। 5 + 2 √ आयोटा ओवर 1 - 2 √ आयोटा। तो नीचे अगर कंपलैक्स नंबर तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ है, रैशनलाइज कर लो, साइन चेंज करो और रैशनलाइज। ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਬਸ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਨੀਚੇ ਦੀ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ।
5 इंटू 1 5, दिस इंटू दिस, 2 अंडर रूट 2 आ गया, आयोटा स्केयर कितना आ गया माइनस, ता हो गया -2, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन 5 इंटू दिस 5 इंटू 2 अंडर रूट, दिस इंटू दिस प्लस 2 अंडर रूट, आयोटा कॉमन, और नीचे आ गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का स्केयर, तब 1 का स्केयर माइनस 2 अंडर रूट आयोटा दा स्क्वायर, राइट। इतने नोमरेटर आ गया 3 प्लस 2 अंडर रूट आप कॉमन निकालेंगे आयोटा इंटू 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंदर 6, ठीक है, 6 इंटू 2 अंडर रूट, और नीचे आ गया 1, 2 अंडर रूट का हो गया 2, आयोटा स्केयर का हो गया -1 का हो गया इतने प्लस, ता +2 कितना आ गया 3 प्लस आयोटा 6 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3, नोमरेटर और नोमरेटर विचों 3 कॉमन ले लो और नीचे वो नाल कैंसल कर दो, सो यू विल लैफ्ट विद 1 प्लस आयोटा 2 इंटू 2 अंडर द रूट, दिस इज योर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 2 इंटू 2 अंडर रूट, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकेंड पार्ट। हुण जो आ मैक्सिमम पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, देखो आयोटा की कितनी पावर्स है, ਇਹਦੇ ਲਈ जो आप प्रीवियस लैक्चर मैं किया सीगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ठीक है। पहले तो तुसी वो वीडियो देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ अपना प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है कंपलैक्स नंबर जो आप स्टार्ट किया सीगा वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, और तुसी पहले उन्होंने चंगी तरह समझो कि आयोटा की पावर्स ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ सॉल्व करना है। तो आह वाले क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ फ्रॉम द कंपीटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs भी करा रहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो आयोटा पावर -35 है सैकेंड पार्ट, आयोटा पावर -35, तुसी की करोगे पहले नीचे ले आओ आयोटा पावर 35, हुण स्क्वेयर दी टर्म्स बनाओ ये, क्योंकि आयोटा स्केयर आपको पता ही है, तो आयोटा स्केयर हो जाएगा इंटू 17 पावर आ गया, 17 पावर 17 और 2 34 हो गया ना, तो एक आयोटा बचा, फिर 34 पावर तो लग गई इत्थे, है ना। हुण आयोटा स्केयर की वैल्यू भरो कितना आ गया -1 की पावर होगी 17, और आयोटा फिर उवें दा उवें, और -1 की ऑड पावर है तो कितना आ गया माइनस, और इत्थे आ गया माइनस आयोटा। हुण रैशनलाइज कर लो, आयोटा ना मल्टीप्लाई आयोटा ना, क्योंकि नीचे डिनोमीनेटर के विच आयोटा नहीं रहना चाहिए, अंडर रूट भी नहीं रहना चाहिए, आयोटा उवें दा उवें, ये आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया आयोटा स्केयर -1 होंदा तो कितना आ गया +1, इत्थे तुसी वैल्यू लिखोगे दसोगे आयोटा स्केयर इज -1, तो कितना आंसर आया तुहाडे कोल आयोटा, तो आयोटा पावर 35 इज आयोटा, दिस इज योर आंसर। लेकिन ये एस फॉर्म च लिखना है ना, आप तेन एस फॉर्म च लिखोगे a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई 0, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं, और b की वैल्यू कितनी आई आयोटा के नाल कितना मल्टीप्लाई है 1, तो b की वैल्यू आ गई 1, बोलो समझ आ गया। इसी तरह ही 2 आयोटा पावर 3 है, आयोटा पावर -39 है, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, ठीक है। आयोटा पावर 9 को किवें लिखोगे आयोटा स्केयर पावर 4 और एक आयोटा बच जाएगा, और आयोटा पावर 19 की लिखोगे आयोटा पावर स्क्वायर दी पावर कितनी आएगी 7 8 8 दूनी 16 9 दूनी 18, तो 9 पावर आ जाएगी, आयोटा स्केयर पावर 9 18, और एक नाल आयोटा और लग जाएगा। सिमिलरली आ सारे क्वेश्चन तुसी ट्राई करके देखो, गिव मी योर रिस्पॉन्स इन माई कमेंट बॉक्स कि सर मेरे यहाँ क्वेश्चन निकल गए ने या नहीं निकले, तो फिर आप कोई गल नहीं दोबारा वीडियो बना लाँगे, या एक जूम क्लास लगा लाँगे, या किसी भी तरह चाहे WhatsApp के उपर आप गल कर सकते हैं, थानू कोई डिफिकल्टी लै सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। इन माई नैक्सट लैक्चर वी शैल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज, जो यदि फर्स्ट एक्सरसाइज बनती है कंपलैक्स नंबर की, जो भी अपना NCERT के चैप्टर है फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंपलैक्स नंबर की स्टार्ट करांगे, ठीक है। ओके, सी यू।